क्या कहेंगे? Because actually he was following the Boasian view, right? Which one? Fieldwork tradition. And in fieldwork tradition there are various methods. But as you told that to get the accurate result, realistic result, right? And a proper details about a culture, you need a participatory observer. What he felt, that without being a member of society, you cannot get the accurate picture of society. One moment. Because he was a researcher and he wanted an exact result what is expected from a science. And in science it is said that if you are not in laboratory, right, you cannot get the exact result. So he made society as a laboratory. So now what result depends? First, the accuracy, right? First thing is accuracy. Second, what is advantage? Look, if we talk about advantages can be written in two different forms: absolute and relative. Absolute means the advantages of participatory observation. Relative means as compared to other methods used by other people. So what are the advantages of participatory over the other methods, right? Other methods of research. So if we take non-participatory observation, if we take the other method, questionnaire, schedule, all those methods, so how this has a certain advantage? Yes. Holistic view. Second important thing is that holistic view आप ले सकते हो. And और बताओ. आप इमेजिन, जैसे मैंने कल भी तुमको कहा था, यू नीड टू बी इन फील्ड. इट इज साइंस. विदाउट बीइंग ए रिसर्चर यू कैन नॉट राइट आंसर. आप सोचो कि आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं. फर्स्ट आपने कहा एक्यूरेसी मिलती है इन ऑल द एस्पेक्ट्स. डेटा कलेक्शन एक्यूरेसी, हर चीज का एक्यूरेसी है. सेकंड, यू गेट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द कल्चर because you meet to all the things as we discover the culture construct. You get ideal view, you get the real culture view, and finally culture construct, right? तो more accuracy है, holistic view है, और क्या है? प्राइमरी डेटा तो ही है. आप लिख सकते हैं इसमें एक्यूरेसी प्राइमरी डेटा से आएगा. कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हो गया. अब अगर मैं पूछूं कि डिसएडवांटेजेस क्या है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात तुमने कही है. दैट इज, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. गेट एन एग्जांपल. टू मार्गेट मीड, व्हेन in 1927 Margaret Mead made a study on the Samoans. She told that Samoans people are joyful, right, stressless, and are very calm and peaceful, right? They live in a very free environment. They nurture their children in very free environment,
right? And the environment, the cultural environment of Samoans are far more better than the environment of Western societies. That was the study made by Margaret Mead in 1927. But in 1946, when Freeman made same study on Samoans, he discussed about the stressful life of the Samoans. Contra. That shows the emotional attachment of a researcher with the particular society in participatory observation. What happened with the Margaret Mead? In that way, because she received that emotion, love and affection from that society, right? So she did not think about the other aspect of the culture. So this is the problem. You can write this example. You can write this study. Advantages लिख लो पहले. Advantages: accuracy, holistic view and primary data. Data and proper establishments of theory. Proper establishment of conclusion. Accuracy of data, accuracy of information, right? Accuracy of information, holistic view of culture, primary data and proper conclusion based on realistic picture, right? पहली बात है. अब limitations. पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन क्या करता है? इट एसोसिएट और अटैच रिसर्चर टू द सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, राइट? एंड इट लीड्स टू सब्जेक्टिविटी. इन रिसर्च. In terms of emotional point of view, in terms of emotional attachment, for example, Margaret Mead worked on Samoans in 1927 and presented a joyful, anxiety-less, and free societal picture of Samoans. Right? As compared to Western society. अगर लिखना चाहो तो लिखना, ना लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड है. अगर लिखो एज कंपेयर टू दी वेस्टर्न सोसाइटी और ना लिखो तो भी इट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस नाउ. But in 1946, Freeman worked on same society and discussed a stressful life of Samoans. राइट. सो दैट कॉन्ट्रा. तो अब हमारे पास में ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से बोला है. नाउ वी आर सेटिंग इज एज एन एग्जांपल. देखो ऐसा हो रहा है. सो इट वाज नॉट अ रीस्टडी मेथड. इट वाज नॉट अ रीस्टडी. कब होता? जब मार्गरेट मीड खुद आके करती.
इट वॉज नॉट मेड बाय द मार्केट मेड, इट वॉज मेड बाय द फ्री मैन. सो एक स्टडी ने मैं बताया कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कैन बी सब्जेक्टिव, राइट. इमोशनल अटैचमेंट इज ऑलवेज देयर. नॉन पार्टिसिपेटरी में ये प्रॉब्लम नहीं आता, राइट. नॉन पार्टिसिपेटरी में प्रॉब्लम नहीं आता. एक होता है जिसमें आप सेमी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करते हो. सेमी का मतलब क्या हुआ? हैवी, और you are taking part in all the activities but you are aloof. Emotionally you are not attached with the society. A theory of attachment detachment. लिख लो semi participation. Semi participation. And this semi participation theory is used in the case study actually, right? When you make case study ना, तुमने नाम सुना होगा, रॉबर्ट स्पेंसर है, मार्केट में अपना ये रॉबर्ट रेडफील्ड. वी शैल डिस्कस अबाउट रॉबर्ट रेडफील्ड इन द पेपर सेकंड, जब हम बात करेंगे अर्बन रूरल कंटिन्यूम की, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की बात करेंगे, अर्बन रूरल की. तो मार्केट मैं तुम्हें बता देता हूं, वैसे हमारे कोर्स में नहीं आएगा, जा चुका है. दिस इज कॉल्ड द रूरल अर्बन कंटिन्यूम, और इंडिया में चलता है ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, सेम वॉर्ड पे चलता है. एंड द स्टडी ऑफ रॉबर्ट रेडफील्ड was later used by the LP Vidyarthi, right, in his own study, right. He followed the same path like D.N. Majumdar followed the path of Malinowski, right. उसने Malinowski के फंक्शनलिज्म को अपने उसमें यूज किया, right. और इवोल्यूशनरी मेथड तो हमारे यहाँ ज्यादा था नहीं. इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कुछ मायनों में इसलिए अलग है बिकॉज जैसे हम लोग परिभाषा देते हैं, व्हाट वी से दैट इन रिसर्च फील्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड रिसर्च टू अदर सोसाइटीज, राइट, अदरवाइज अ बायसनेस वुड बी देयर. बट व्हाट हैपन इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं रिसर्च बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑन इट्स ओन सोसाइटी, राइट. ऑटो एंथ्रोपोलॉजी, सेल्फ एंथ्रोपोलॉजी, हम इस पे ज्यादा काम कर रहे हैं. दे ऑल एंथ्रोपोलॉजी, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, एस.सी. रॉय, ये किस पे काम कर रहे हैं? द ओन इंडियन सोसाइटी, राइट. सो इन दिस वे यू कैन नॉट यूज ऑल दोज अप्रोचेज व्हाट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लाइक फंक्शनलिज्म, लाइक सिंबोलिज्म, मोस्ट मॉडर्न. क्यों? क्योंकि उतना तुम्हारे पास स्कोप नहीं है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. So you cannot make yourself aloof to the world. ट्राइब में थोड़ा बहुत ठीक है, बट यू टॉक अबाउट द सोसाइटी. तो जब आप सोसाइटी की बात करोगे तो यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू बॉर्न इन वॉट ऑफ द सोसाइटी. सो वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग दैट इज ऑलरेडी इन यू, राइट, दैट इज ऑलरेडी इन यू. अब अगर आप बेगमपेट पे काम कर रहे हो कि वाई मुस्लिम पीपल आर, मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वाई इट इज हैपनिंग. बट यू आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट. तो आपके लिए बहुत आसान नहीं है जीरो होके सोचना. आपको जैसे कोई कहता है कि आपको अपने घर में सन्यासी बन के रहना है, राइट. यू विल लिव एट होम, सारे स्तर आपके चारों पास रहेंगे और तुम सन्यासी बन जाओ, नहीं है ना. बिकॉज व्हेन बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? भाई बुद्ध लीव, घर पे भी तो एनलाइटमेंट हो जाता. बट इंपॉर्टेंटली तुम्हें अलूफ होना था, अलग होना था, सेपरेट होना था, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना था. तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पास में यही एक प्रॉब्लम आया, टू लूज योर ओन आइडेंटिटी एज अ मेंबर ऑफ. तो जब एस.सी. दुबे को पढ़ोगे, किसी को पढ़ोगे, तो यू विल फाइंड कि उनकी विलेज सोसाइटी एक विलेज सोसाइटी है स्टडी बाय द पर्सन ऑफ विलेज. जैसे गांव वाला गांव का वर्णन कर रहा है, क्या कहेगा? आप क्या करोगे? गांव में चेंजेस की बात करोगे, बट मेंटालिटी की बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू बॉर्न एंड बॉट अप इन दैट. आज हमें कोई कहे गांव कैसा है, तो हमारे गांव की तस्वीर क्या? बहुत मीठा सा, सुंदर सा, हरा भरा, लोग प्यार से रह रहे हैं, राइट. व्हाट वी हैव इन आवर माइंड, सिंप्लिसिटी है, लाइफ में सिंप्लिसिटी है, टाइम उनके पास है, राइट. लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, नॉट मोर एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन पीपल, नॉट वेरी मच एक्सपेक्टिंग अबाउट लाइफ, राइट, नॉट वेरी मच एक्सपेक्टिंग अबाउट लाइफ. यही तो चीजें हो रही हैं, यही एक प्रॉब्लम आ रही है. हमारे पास में पहले से तस्वीर तैयार है, राइट. तो व्हेन यू विल स्टडी ना, तो यू हैव वन पिक्चर इन योर माइंड ऑलरेडी. सो नाउ अ कंपैरिजन विल स्टार्ट, अ कंपैरिजन विल स्टार्ट, नॉट एब्सोल्यूट.
when Malinowski approached to a society was very much aware that I am completely unaware about the culture and society, the particular thing, right? जब उसने पढ़ा तो a new thing came, a new thing with new analysis, comparison था, but those people were based on the cultural relativism things. तो उन्होंने उस कल्चर को उसी फॉर्म में पढ़ा, because they did not belong to that particular culture. तो यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में तुमको देखे जाएगी. इसीलिए हमारी एंथ्रोपोलॉजी में वो डिमार्केशन डिस्टिंक्शन नहीं आया जो थ्योरीज में वहां आया था. हम उनको ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी रिजिडिटी सोसाइटी में है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको तुम हिस्टोरिकल रूप में यूज कर सकते हो, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं ले सकते. आजा, ये एक बड़ा दिक्कत है. सो इन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन दी जाए, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो क्या एडवांटेजेस है? सब्जेक्टिविटी नहीं होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होगा. प्रॉब्लम क्या होगा? लिमिटेशंस क्या होगा? एक्यूरेसी. लिमिटेशन क्या होगा? एक्यूरेसी. Because these people are not able to get the accurate data about the non-materialistic aspect of culture. वहां इंटरप्रिटेशन ज्यादा होगा और इन्वॉल्वमेंट, हाँ, यहां इन्वॉल्वमेंट ज्यादा और हाँ, ये एक नॉन पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी के बीच का फर्क आया. डाइट इनडाइट में यही फर्क है. डाइट यू आर इन द फील्ड एंड इनडाइटली यू आर टेकिंग द थिंग्स. यही है ऑब्जर्वेशन, राइट? जैसे कोई हमसे पूछे कि जीनियोलॉजिकल मेथड है. What is genealogical method? What is genealogical method? Look, वर्ड हमने कहां से लिया था? जीनियो. जीनियो का मतलब क्या होता है? फैमिली, राइट? यू आर डिस्कसिंग अबाउट फैमिली. स्टडी ऑफ फैमिली. जीनियो मीन्स फैमिली. स्टडी ऑफ जीनियो मीन्स नॉट जीन. जीन वर्ड जीनियो से बना है, राइट? हाँ, जीनियो मीन्स फैमिली, राइट? और जो फैमिली को लेके चलता है वो कौन है? जीन है, द फैक्टर्स. सो जीनियो मीन्स फैमिली, लॉगस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ फैमिली मतलब किनशिप. सो जीनियोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ फैमिली. उसके लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू नो. अब कोई क्या जीनियोलॉजी के लिए तैयार कैसे हो? अब मैं क्वेश्चन को बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं. क्वेश्चन आ गया 150 वर्ड्स का, हमने लिखा जीनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैमिली. लिख दिया भाई हमने. अब हम क्या करें जी? 150 वर्ड्स है, हम लिखेंगे what an anthropology should consider in genealogical study. One should aware about the family history. They should talk to the elder person. Should go with the kingship terminology. Should aware about the language. Make a proper part. Make a longer study. हो गए 4 पॉइंट पूरे. अब कैसे कैसे करें? तो we discuss the method. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. पहला हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा. हमने कर लिया, डेटा कलेक्शन हो गया. इंटरप्रीट द डेटा. व्हेन दे इंटरप्रीट द डेटा दे शुड अवेयर अबाउट द कल्चर, सोसाइटी, थिंग्स, कंपैरिजन. बार बार करो. एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? पिक्टोग्राफिक फॉर्म में. तो कैसे करते हैं? तो जो सिंबल हमने यूज किया कि सिंबल क्या है मेल का और फीमेल का, तो हम बताएंगे ये सिंबल लिए. ठीक है जी, ये किसके हैं? मेल और फीमेल. जी मैरिज का सिंबल क्या है? जी ये है, यही है ना, ये मैरिज का सिंबल लिया हमने. क्लियर? या फिर और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्या सिंबल है? क्या सिंबल है? ये कर लिया ना, ये कर लिया ना सिंबल. और डिनोटेशन ईगो. ईगो के बाद बाकी लोगों को डिनोट कैसे करते हो? ऐसे करते हैं जी. मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है? तो मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया. और बच्चों के लिए क्या हो गया? मैरिज के लिए ये हो गया, चिल्ड्रन के लिए हो गया. तो हमारे क्वेश्चन के 3 पार्ट कर दिए हमने, हो गए 150 वर्ड्स. अब लिमिटेशंस. ये जीनोजेमेट्रिक लिमिटेशंस क्या है? बताओ बताओ. हर कुछ बुक नहीं होता. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीनोलॉजिकल वर्ड? पहली बात है, you need to depend upon the record given by the person. पहली बात. सेकेंड बात, if a name change, the whole genealogy will get changed. Right? Clear?
तो नेम की एक्यूरेसी जरूरी है, जगह की एक्यूरेसी जरूरी है, डेटा की एक्यूरेसी करिए। अगर कुछ भी चेंज होता है तो पूरी पेडिग्री, समझ रहे हो? तो ये जीनियोलॉजिकल मेथड है। अगर यही बात बायोलॉजी में होती तो इसको बोलते पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते? राइट। एक फूड भी आता है कि तुम्हें याद हो तो, जिसका नाम ही यही है बच्चों के लिए, अब डॉग के लिए पेडिग्री आता है ना। तो एक्चुअली पेडिग्री असल में ये है, स्टडी ऑफ फैमिली। तो पेडिग्री, और पेडिग्री का मेन मतलब होता है क्रेन्स फुट। तो पेडिग्री में क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमने सिस्टम क्या किया था, ये और ये और ये, उसमें होता है ये और ये। सो नाउ वी हैव वर्ड्स फॉर जीनियोलॉजी। तो मेथड हमने लिया साइंटिफिक मेथड, उसके बाद हमने बात किया किसका, हिस्टोरिकल मेथड, उसके बाद हमने बात किया कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो कंपैरेटिव को लिखना हो तो सिंपल बात लिखो, ये हमने क्या लिखा, कंपैरेटिव, राइट। व्हाट इज कंपैरेटिव मेथड? कंपैरेटिव मेथड इज ए मेथड टू कंपेयर डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट एलिमेंट्स। दो बात, इधर डिफरेंट सोसाइटी, राइट, सेम टाइम, और डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए सोसाइटी, दोनों बात कंपैरेटिव में आती है। उसके बाद आप लिखा कंपैरेटिव सोसाइटी के अंदर हम लिख रहे हैं कंपैरिजन किया आपने। किसे कंपैरिजन कर रहे हैं? कि हम कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटीज को। तो कोई एक टॉपिक लिया तो कंपेयर दो तरह का हुआ। पहले जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो किस थॉट्स के साथ कर रहे थे? एथनोसेंट्रिसिज्म, इवोल्यूशनरीज, डिफ्यूजनिस्ट। थॉट कौन सा था? एथनोसेंट्रिसिज्म। तो पहले इस पे चर्चा करो। इवोल्यूशनरी डिफ्यूजनिज्म किसके साथ चल रहे हैं? एथनोसेंट्रिसिज्म के। दे कंपेयर्ड वेस्टर्न सोसाइटी टू द सिंपल सोसाइटीज and proved that simple Western society are the part of civilization and these are the savages and barbarians, right? Comparison society, simple to complex, यही तो लेके आ रहे हैं। तो ये चीज हमने, दूसरा किस चीज का कंसेप्ट आया? हमें कंसेप्ट आया उसके बाद में, राइट। देन टॉक अबाउट कल्चर रिलेटिविज्म, राइट। इस पे हमने डिस्कस किया कि कैसे कल्चर रिलेटिविज्म यूनिक की बात करता है। उसके बाद में आप लाए क्रॉस कल्चर स्टडी, राइट। कई कल्चरों का एक साथ अध्ययन करना, राइट। स्टडी मैनी कल्चर एट वन टाइम, क्रॉस कल्चर स्टडी कर रहे हो आप, कर रहे हो ना। जो किसने किया था? मर्डोक ने किया था 250 सोसाइटीज का। फिर उसके हिसाब से उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी, वो 5 डेफिनेशन ठोक डालो, वो अपने कंपैरेटिव मेथड में सिंपल आए। ये बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट डेटा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लिमिटेशन के साथ होती है, तभी तो अगला आता है ना। अगला वर्जन क्यों आता है? अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड किस फॉर्म में होगा? कि जो पिछली बार आउटडेटेड हो चुका है उसको इस बार अपडेट किया। तो ये आपका हुआ कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव के बाद हमने किस मेथड की बात की थी? हम ऑब्जर्वेशन पे आ गए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि यू आर एन कीन ऑब्जर्वर, राइट। यू ऑब्जर्व ए सोसाइटी। और ऑब्जर्वेंस के दो तरीके, इधर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर, इधर यू आर सीइंग बाय योर ओन आइज और बाय अदर आइज, राइट। तो हमने लिखा भाई ओन आइज के 4 तरीके हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड 2 तरह का होता है, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी। ये हमने किया, ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन, राइट। इसके बाद हमने बात की थी एथनोग्राफी की। एथनोग्राफी डायरेक्टली हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, सुन लो। 2 वर्ड है, एथनोलॉजी एंड एथनोग्राफी। क्या फर्क है? उल्टा हो गया हो। एथनोलॉजी इज अबाउट अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर्स। एथनोलॉजी, एथनोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर। एथनोग्राफी शुरू में क्या हो रहा था? एथनोलॉजी, उनको बोलता था एथनोलॉजिस्ट, बिकॉज वो किसी एक कल्चर पे डिस्कस नहीं कर रहे थे, केस स्टडी ऑब्जर्वेशन नहीं था।
तो वो क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह से डेटा उठा रहे थे, सेकेंडरी डेटा, एंड ऑन दैट वे दोज पीपल क्या कह रहे थे, भाई यहां पर ये कल्चर है, वहां पर वो, हमारी ऐसी उनकी वैसी. सो द होल कल्चर स्टडी वाज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, राइट. सो एथनोलॉजी में आप क्या करते हो, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. क्योंकि लोगस किससे जुड़ा हुआ है, स्टडी. एथनो क्या है, ट्राइब्स, राइट. स्टडी ऑफ ट्राइब्स, स्टडी ऑफ ट्राइब्स. तो स्टडी ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कल्चर, सिंपल सोसाइटी इज कॉल्ड एज एथनोलॉजी. और अगर इसकी जगह मैं ये वर्ड लिख दूं, डिस्क्रिप्शन, क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन. ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. क्लियर. So now it is not study, it is just a description of a culture. Ethnographers is what it does, it describes a culture completely. So ethnography is about a culture. जैसे टोडा पे किसने काम किया, रिवर्स का, तो ये एथनोग्राफी है, राइट. ये क्या है, एथनोग्राफी. तो एथनोग्राफी में यू डिस्क्राइब अ कल्चर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कल्चर इज कॉल्ड एज एथनोग्राफी. एंड एथनोग्राफी इज द लास्ट सिस्टम ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. एथनोग्राफी क्या है, पूरा डेटा प्रेजेंटेशन है. फर्स्ट यू कलेक्टेड डेटा, देन यू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द डेटा, एंड फाइनली यू प्रेजेंटेड द डेटा. सो द प्रेजेंटेशन डेटा किस फॉर्म में किया आपने, एथनोग्राफी. कल्चर वर्णन पूरा, राइट. सो और एथनोग्राफी के लिए क्या करना होता है, यू वर्क ऑन ए कल्चर कंप्लीटली होलिस्टिक व्यू के साथ में, विद ऑल डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स व्हाट यू कैन यूज, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चनरी, शेड्यूल, कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू, कुछ भी तरीका अपना सकते हो. लाइक यू गो टू लाइक मेलनस्की वेंट टू द ट्रोबिलियन आइलैंड, वहां गया. अब उसके पास एक चीज है, टूल, टेक्निक, मेथड और मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी क्या है, फंक्शनलिज्म. मेथडोलॉजी क्या है, द फिलोसॉफी बिहाइंड द होल मेथड. तो उसकी फिलोसॉफी क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट, राइट. सो उसके पास एक माइंड है फिलोसॉफी का, वो क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट. सो टू मेलनोस्की कल्चर क्या है, फंक्शनल है, राइट. वाई टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल. तो उसके पास में मेथडोलॉजी है फंक्शनल. उस मेथडोलॉजी के लिए उसका मेथड क्या है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ये उसका मेथड हो गया. उसके लिए टूल और टेक्निक क्या अपनाएगा, इंटरव्यू लेगा, क्या करेगा, लोगों का इंटरव्यू लेगा, शेड्यूल करेगा, क्वेश्चनरी नहीं करेगा. क्वेश्चनरी में क्या होता है, आप यहां बैठे हो, क्वेश्चन भेज दिए, राइट. जो कौन कर रहा है, कोराडो बॉयस कर रही है, कुछ बैठी हुई यहां पे, क्वेश्चन अलवर में भेज दिए, लिख के वापस भेज दो, राइट. मॉर्गन कर रहा है, क्वेश्चन भेज रहा है, इकट्ठे कर रहा है. मर्डॉक कर रहा है, क्वेश्चन भेज रहा है, इकट्ठे कर रहा है. शेड्यूल होता तो क्या होता है, इफ आई से दैट यू हैव अ शेड्यूल टुडे, इफ आई से, जैसे लोग बात करते हैं, व्हाट इज माय शेड्यूल टुडे, आपको 2:30 पे याद आना, 3 बजे वहां जाना, 4 बजे वहां जाना, 6 बजे याद आना, राइट. ये आपका शेड्यूल है. उस शेड्यूल में क्या होगा जी, आप वहां जाएंगे, आपको कोई काम होगा. शेड्यूल में यू गो देयर with the list, right. क्वेश्चनरी में क्वेश्चंस will be there, in शेड्यूल में you will be there with, हाँ. सो अगर कोई पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करता है तो उसके पास क्या तरीका है, इंटरव्यू और शेड्यूल, दो चीज लेके जाएगा. क्वेश्चनरी का मतलब नहीं है. तो एक बंदा जब किसी में जा रहा है फंक्शनल एस्पेक्ट के साथ में, तो मेथडोलॉजी फंक्शनल, मेथड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, राइट. और साथ में वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन, शेड्यूल एंड इंटरव्यू. हो गया ये. अब आप क्या करोगे इस हिसाब से, अब शेड्यूल इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, डेटा कलेक्शन, मेथड है ऑब्जर्वेशन, मेथडोलॉजी क्या है, फंक्शनलिज्म. तो फाइनली जब वो ड्राफ्ट निकल के आएगा तो उसके बेस में क्या होगा, फंक्शनलिज्म, राइट. जो ऑब्जर्व है वो किस फॉर्म में हुआ है, पार्टिसिपेटरी, और जो टूल्स यूज किए गए हैं वो किए गए. बस ये ध्यान रखना.
जैसे मान लो इसकी जगह खाली केस स्टडी होती कि यू आर गोइंग टू सोसाइटी फॉर ए स्पेसिफिक कॉज, जैसे मुझे तो खाली किनशिप का अध्ययन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मुझे खाली मैरिज का अध्ययन करना है, बाकी सोसाइटी में क्या हो रहा है आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। तो कौन सा तरीका होगा बताओ? मुझे जाना है, जैसे मान लो सोसाइटी में जाना है और मुझे सिर्फ मैरिज का रखना है। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे टेंट करने वाला आता है, बेटी किससे दी, किससे ली, दहेज कितना है, कितने लोग आएंगे, खाना कैसे, पूछेगा क्या? उसको क्या मतलब है? टेंट लगाओ, कहां लगेगा, जगह बता दो, बात खत्म होगी। दिस इज द केस स्टडी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और कॉज, यू स्टडी ए सोसाइटी। केस स्टडी है। अब जब आप केस स्टडी में हो तो आपको एक केस तो पक्का करना है। भाई तुम्हें मैरिज के बारे में पता करना तो रहना तो पड़ेगा, रहना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बट लंबे समय तक नहीं रहना, पूरी इस कल्चर नहीं जाननी। तो क्या करोगे? सेमी पार्टिसिपेटरी, राइट? सेमी पार्टिसिपेटरी। इंटरव्यू भी लूंगा, बट इंटरव्यू में क्या करूंगा कि कुछ क्वेश्चन बना के लाऊंगा, कुछ वहीं पूछ लूंगा, यानी सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर? तो सेमी पार्टिसिपेटरी, सेमी कंजर्वेटिव हो गया मेरा तरीका, मैं आ गया, हो गया केस स्टडी। पर अगर पूरी कल्चर जानना है तो क्या करूंगा? पार्टिसिपेटरी, राइट? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्राइमरी डेटा टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा चाहिए तो जाऊंगा, और सेकेंडरी चाहिए तो क्या करूंगा? क्वेश्चनरी भेज दूंगा, मिशनरी से पूछ लूंगा, ट्रेवलर से ले लूंगा अकाउंट, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाऊंगा। दिस इज द वे। तो अब जैसे पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन माइंड में आए तो समझ लेना हॉलिस्टिक अप्रोच है, फुल कल्चर का अध्ययन है, राइट? ये ध्यान रखना। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, चाहे वो समोन के साथ में था उसका, चाहे वो रूथ बेंडिक था, चाहे वो कौन था, ब्राउन हो, चाहे मेलिनोस्की हो, सबके सब ने ये फुल पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, राइट? फील्ड वर्क में कुछ भी हो सकता है, फील्ड वर्क में केस स्टडी भी हो सकती है, फील्ड वर्क में ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, ये सब फील्ड वर्क में। आप फील्ड में जाके कुछ भी करो, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, केस स्टडी, कुछ भी कर लो। तो अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, राइट? तो ऑब्जर्वेशन में हमने ध्यान रखना, मेथड हमने चारों कर लिए, राइट? पांचवा एक तरीका और हो सकता है स्टैटिस्टिकल, कि हम सिर्फ क्या करें? डेटास लेकर। मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब अगले मेथड में आते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं, दैट इज हाँ सेमी पार्टिसिपेटरी। इसमें क्या करना है? सिंपल ही, सेमी पार्टिसिपेटरी में क्या करोगे? बीइंग पार्ट और नॉट, अटैचमेंट डिटैचमेंट लिखो, अटैचमेंट डिटैचमेंट। कई बार नोट्स में पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय के लैंग्वेज के। मेरा पूरा के पूरा नोट्स पॉइंट्स में है, लैंग्वेज बहुत कम होती है मेरे पास। मैंने पहले लैंग्वेज बनाई, फिर मैंने कोशिश की, कुछ नहीं बना। मैंने किताब उतारी, कुछ नहीं मिला, भगवान कसम। नंदी मसलन की किताब, एक किताब उतार के मैंने नोट्स बनाए हुए ट्राइबल इंडिया थी ना, मैंने पूरी पूरी लिख ली। अब मुझे फिर समझ में आया ये क्या लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, नदी मसनैन, पांडे, सब तीनों को मिलाया, लिख लिया। बात तो वही है, दे हैव देयर लैंग्वेज, वेयर इज माय लैंग्वेज? एंड अंटिल अनलेस आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर लैंग्वेज, हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप माय लैंग्वेज? और एग्जाम में किसी भी बुक की लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है बुक की लैंग्वेज में, अब आप कहां से क्वेश्चन लाओगे? तो फिर मुझे लास्ट में खोपड़ी मार के समझ में आया, 3-4 महीने बाद सब नोट्स को साइड में पटका, पॉइंट्स। फिर मैंने एक पॉइंट उठाया, आंखें बंद कर ली, अब बता क्या पढ़ा? तेरी लैंग्वेज बोल। तो शुरू में बहुत बुरी लैंग्वेज आती है, ईमानदारी से, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं होती। तो शुरू में मैंने पॉइंट्स बनाने की कोशिश क्या कोशिश की? स्ट्रक्चरलिज्म बाय लेवी स्ट्रॉस हो गया, थिंकिंग ऑफ माइंड, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर बाय क्रिएटर, 8 पॉइंट हो गए ना। अब बस मुझे इसके सेंटेंस बनाने थे। तो अगर मुझे ये 4 चीजें याद है तो बस मेरा पॉइंट पूरा हो गया। शुरू में मुझे इतना ध्यान में रखना है कि मुझे लैंग्वेज पे नहीं, पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज उतनी पावरफुल नहीं है। लैंग्वेज के लिए बुक पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, नोट्स मत बनाओ, नोट्स पॉइंट्स में बनाओ, डायग्रामेटिक, पिक्चर, और सबसे तरीका होता है फ्लो चार्ट। जैसे मैंने बताया मेथड, 1 2 3। मेथड क्या होता है? प्रोसेस। मेथड इज प्रोसेस, मेथड इज अबाउट द रिसर्च,
कौन कौन से पॉइंट बना लिए मैंने कहा? साइंटिफिक मेथड, कंपेरेटिव, हिस्टोरिकल, जीनोलॉजिकल, स्टैटिस्टिकल। उसके बाद पहला साइंटिफिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव। नीचे दो और बनाओ, कौन से जिसमें तुम मास्टर हो। तुम अच्छे बनाते हो डायग्राम्स, तुम डायग्राम बहुत पावरफुल। हाँ, क्वालिटेटिव और क्या है? और क्या किया था हमने? क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव हो गया। और क्या होता है साइंटिफिक में? भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो यूज करो। हर चीज बुक में नहीं होता, क्योंकि हर आदमी लिमिटेड है। तुम 4 बुक पढ़ोगे, तुम्हें 4 अलग अलग व्यूज मिलेंगे। क्यों? हर एक का थॉट है, राइट? मेलिनोस्किन जो लिखा वो रॉबर्ट रेडफील्ड नहीं लिखेगा। रेडफील्ड ने जो लिखा वो अपना रेडक्लिफ ब्राउन नहीं लिखेगा। हर एक ने अलग अलग जगह देखी है, अलग अलग सोच समझा है। एक वीपिंग की बात कर रहा है कि रोना सोसाइटी कल्चर का सिस्टम है, सोसाइटी के लिए रोना जरूरी है, कि सब मिलकर रोते हैं तो सोसाइटल एकता दिखाई देती है। जो हमने बात की वीपिंग सेरेमनी इन अंडमान आइलैंडर्स, हमारे यहां भी तो होती है। मृत्यु पे इस पे लोग मिलकर सामूहिक रूप से रोते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, राइट? वीर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही बात है। सो अब आपने पॉइंट्स बना लिए, उसमें दो पॉइंट्स लिख लिए इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव, डिडक्टिव का मतलब, डिडक्टिव मतलब प्रोडक्ट इज ऑलवेज देयर, इधर प्रोडक्ट इज नॉट देयर। हमारा काम खत्म हो गया। क्वांटिटेटिव नंबर्स, क्वालिटेटिव वर्ड्स, हमारा काम खत्म हो गया, राइट? ऐसा एक नोट बन गया। अब दूसरे नोट्स पे आ गए। दूसरा तरीका कौन सा? हिस्टोरिकल, डेटा कलेक्शन थ्रू आर्कियोलॉजी। हमारे इतने में समय, हम इतने में आर्टिफैक्ट वार्ट सब डाल देंगे, हमें पता हम डाल देंगे, राइट? आर्टिफैक्ट्स, हाईली डिपेंडेंस ऑन हिस्ट्री, राइट? प्राइमरी डेटा नॉट अवेलेबल। प्रॉब्लम आ गई, लिमिटेशन आ गई, प्राइमरी डेटा नॉट अवेलेबल बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सो प्राइमरी डेटा ऑलवेज प्रॉब्लम है, राइट? बट फिर 3 के नाम लिख दिए। किसने बोला था कि हिस्ट्री जरूरी है? बोआसिन बोलता है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, इवांस पिचार्ड बोलता है, दोनों का नाम लिख दिया। वेस्टरमार्क ने मैरिज हिस्ट्री के लिए लिखा, 3 का नाम लिखा, छोड़ दिया। अगले पे आगे कौन सा? कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव 2 तरह का, एथनोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चर और क्रॉस कल्चर। तीनों पे नाम लिख दिया। इवोल्यूशन, डिफ्यूजनिज्म, इस पे जो रिलेटिविज्म में फंक्शनलिज्म, रिलेटिविज्म का नाम ले लिया। अपना क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। हमने 2 का नाम लिया, हमें समझ में आ गया किस का वर्णन करना है। ब्राउन का, इसका, बोआस का। हिस्टोरिकल तीन थ्योरी लिख दो। मेथडोलॉजी में समझ में आ गई, आगे चलो। जीनोलॉजिकल मेथड, किसका नाम लिखेंगे? रिवर्स का नाम लिख दिया। रिवर्स ने यूज किया, बोआस ने यूज किया, राइट? दोनों ने यूज किया है। उसके बाद किसने यूज किया? फ्रेंच बॉस ने किस पे यूज किया? इन्यूट में। इसने यूज किया। हमारा 2 का काम हो गया, आगे चलो। है? हाँ बिल्कुल किया। क्रोमा दोनों पे 6 पे आया ना। 6 की जो मॉर्गन ने दी है क्लासिफिकेटिव मेथड, टर्मिनोलॉजी, तो उसके बाद किसका नाम लोगे? कौन सा मेथड आ गया जीनोलॉजी के बाद में? स्टैटिस्टिकल डेटा। अब उसके बाद आ गए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किस तरह का हो सकता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। 2 तरह से है, पार्टिसिपेटरी एंड। पार्टिसिपेटरी को बड़ा करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन पार्टिसिपेटरी, अटैचमेंट डिटरमिनेंट, मतलब नॉन पार्टिसिपेटरी, कंट्रोल्ड। और इसमें पार्टिसिपेटरी में किन किन नाम देना है, क्या होना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं। कौन था? मेलिनोस्की गुरु था, राइट? और लिमिटेशन में किसका नाम देना है? पार्टिसिपेटरी में 4 का नाम देंगे। किसका? रूथ बेनेडिक्ट, उसके बाद में मार्गरेट मीड, उसके बाद कॉनराड बुश, और इसका मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। काम किया। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? समोन का डाल दिया। समोन में पहला किसने काम किया? मीड, दूसरा फ्रीमैन। ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। अब अगला टॉपिक लेके आते हैं, केस स्टडी, राइट? हाँ, केस स्टडी। सो थ्रू वर्ड वी कैन नो what actually they say,
that we are going to study a specific case. When study is focused on a specific case or a specific society, institution or element, not society, institution, element or trait. 3 वर्ड याद रखना, इंस्टीट्यूट, एलिमेंट एंड ट्रेट. एलिमेंट कब यूज करेंगे? जब साइंटिफिक बात करेंगे. एलिमेंट किस में होता है? साइंस में होता है. ट्रेट कब यूज करेंगे? जब कल्चर की बात करेंगे. इंस्टीट्यूशन कब यूज करेंगे? सोशल की बात करेंगे. मेरी बात तीनों याद रखना, 3 वर्ड है, एक ही चीज है, इंस्टीट्यूशन, एलिमेंट, ट्रेट. बट 3 जगह यूज कर रहे हैं. ट्रेट कब बात करते हैं? कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्स. तो इन कल्चर एस्पेक्ट ट्रेट विल बी देयर, इन साइंटिफिक एस्पेक्ट एलिमेंट विल बी देयर, एंड इन सोशल एस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन. वर्ड्स बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना कि किस जगह, जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे डेडक्ली ब्राउन की, तो यूज क्या आएगा? इंस्टीट्यूशन. मेलनोस की क्या यूज करेगा? ट्रेट. राइट, ध्यान रखना इस बात. सिंबोलिज्म क्या यूज करेगा? एलिमेंट, क्योंकि वो साइंटिफिक है, थॉट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी है, बिहेवियर है. सिंबोलिज्म है तो वो क्या यूज करेंगे? एलिमेंट. अलग अलग थोपड़ी. तो केस स्टडी इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक स्टडी. राइट, हो गया. इट वॉज स्टार्टेड बाय द केस स्टडी coined by Herbert Spencer. तुम्हारा सोशोलॉजिस्ट है, इसी गांव में ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब है. सो दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, राइट, एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड. मैक्सिको, युकाटन, मैक्सिको में यूज किया है रॉबर्ट रेडफील्ड. इसकी जो स्टडी है ना, वो है रूरल कल्चर, रूरल अर्बन कंटिन्यूम. ये कहता है कि ये रूरल है, ये अर्बन है. ये सिंपल हम कहते हैं, ये कहता है नहीं, ये क्या है? रूरल है, ये कंटिन्यूम है. कि मतलब रूरल अर्बन के बीच में कुछ जोन ऐसे पाए जाते हैं जिसमें रूरल एलिमेंट भी है, और तो दैट शोज अ कंटिन्यूम बिटवीन रूरल एंड अर्बन. जैसे पहले क्या होता था? एक रूरल एरिया, उसके बाद क्या हुआ? एक टाउन, टाउन के क्या बाद बना? सिटी, सिटी के क्या बाद क्या बना? मेट्रो. राइट. तो जो पॉपुलेशन का जो शिफ्टिंग होता था वो ऐसे होता था. तो यहां पे पॉपुलेशन का ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं था. राइट, एक सिस्टमेटिक. अब क्या हो गया? माइग्रेशन रूट, पीपल डायरेक्ट टू दी मेट्रो. मेट्रो चरमरा गए हैं, ये कंटिन्यूम खत्म हो गया है. जो पहले बीच के ये 2 हुआ करते थे ना कंटिन्यूम के रूप में, ये रह गए. पहले छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, तो फिर बड़ा कस्बा हुआ करता जिसको तहसील बोलते थे, उसके बाद आपके बड़ी सिटी आती थी. राइट, अब तो कोई नहीं रहता, न कस्बों में न तहसील. सीधे कहा कि जयपुर भागो. राइट, अपने को तो कहीं नहीं रहना है. राइट, सीधे कहां चलना है? न लाडनू न नागौर, सीधा जयपुर. So the study was made by रॉबर्ट रेडफील्ड. ये किसने कहा था? उसने मैक्सिको में युकाटन सिटी है, उसमें उसने काम किया था मैक्सिको में, और इसी को इंडिया में लाए थे सेम रूरल अर्बन कंटिन्यू फॉर्म में, जो मैंने तुमको बताया. और ये आपको केस स्टडी बताती है किस लिए? कि व्हाई मेट्रोज आर ओवर पॉपुलेटेड. राइट, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस रूरल अर्बन कंटिन्यूम. ये खत्म हो गया है, तो सारा के सारा जो है वो यहां से सीधा कहां गया? अब क्या हो गया? ये क्या रूरल और ये हो गया अर्बन. लोग सीधे यहां आ रहे हैं मेट्रो में. इस वजह से मेट्रो को उनका भी, तो मेट्रो पे पॉपुलेशन कम कैसे जाए?
कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलप करो, इनको बड़ा करो, ताकि ये पॉपुलेशन सीधी यहां पर ना आए। कितना बढ़िया हिसाब दिया उसने। If you want to stop the migration of rural people directly to the metro cities, you need to develop these small towns, right? आज अगर स्मॉल टाउन बढ़िया डेवलप हो जाए तो लोग क्यों जाएगा भाई? आप रूरल एरिया से टाउन में गए, टाउन में सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है बड़ी बड़ी, तो क्यों मेट्रो सिटीज में जाना? बट आप क्या कर रहे हो, सब कुछ सुविधाएं किसको दे रहे हो? मेट्रोज को दे रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, बीच वाले उजाड़ हो गए। यही प्रॉब्लम उसने स्टडी की थी। सो दैट वाज अ केस स्टडी मेड बाय द रॉबर्ट रेडफील्ड इन मैक्सिको, एंड ऑन द बेसिस दैट ये सब्जेक्ट पॉपुलराइज हुआ। क्लियर? कोर्स में नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कोई पूछ ले, देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने का सबसे जरूरी तरीका होता है अप्लाइड। अप्लाइड, तुम्हारे पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि भाई कोई भी कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लो अभी नूह में दंगा हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ, तो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं? ये दो लोगों का काम, या तो सोशोलॉजिस्ट हो या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो। पहले सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुरू में क्या करते थे? ट्राइबल कंटिन्यूम। शुरू में किसका उन्होंने किया? ट्राइबल्स का। ट्राइबल के बाद किसका शुरू किया उन्होंने? विलेजेस का। विलेज के बाद क्या शुरू किया? अर्बन का। अब क्या कर रहे हैं? कंटेम्पररी कल्चर, मॉडर्न वेज ब्रांच। आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट एवरीवेयर है। तो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्हाट सॉल्यूशन यू हैव, ये तुम्हारे इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना है। कल्चरल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स। सेकंड पेपर, रूरल डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, rehabilitation, problems with minorities, scheduled class, scheduled tribes, because you are an administrator. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानता है तो वो सॉल्यूशन दे, राइट? सॉल्यूशन दे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल प्लान आ रहा है, वहां पे स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन भी हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट, इको टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका व्हाट इफेक्ट होगा ट्राइबल्स पे, राइट? और उसको एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट तुम मिटिगेट कैसे करोगे? क्या तुम्हारे क्या गवर्नमेंट का भी बना रहे और ट्राइबल्स को भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या निकालोगे? तुम्हारी सारी स्टडी का यही मतलब है। तुम्हारे सेकंड पेपर ये क्वेश्चन, मोर और मोर केस स्टडीज। जितना तुम केस स्टडीज को सॉल्व करोगे ना, उतना ही तुम सब्जेक्ट को समझते जाओगे। एज ए ट्राइबल, राइट? जैसे कहा जाता ना कि इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए ट्राइबल, थिंक लाइक अ ट्राइबल। तो वो जो थिंक लाइक अ ट्राइबल है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, हु मेड रिसर्च ऑन ट्राइबल, डिड नॉट मेक रिसर्च ऑन देमसेल्व्स, as we are not making research on ourselves. So those who made research on tribals, वो बताए। जैसे डीएन मजूमदार जब हो के बारे में लिख रहे थे, when डीएन मजूमदार was writing about the हो, तो that was the time, that was the era of 1946. उन्होंने लिखा the impact of industrialization and urbanization over the हो tribe, right? ये बात उन्होंने हो पे लिखा। So that was a case studies in functional aspect. फिर भी ये जो उन्होंने लिखा, ये फंक्शनल एस्पेक्ट से थोड़ा हटके था। ये बात कर रहा था किसका? डिफ्यूजनिज्म का। जब हम बात करते हैं इंपैक्ट की, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन, है ना भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया तुम्हारे अंदर? अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आए, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज अंदर हमारे अंदर डिफ्यूज हुई है। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं है, डिफ्यूजन एस्पेक्ट है। आउटर टू इनर, हायर टू इंडस्ट्री का मतलब क्या है? हमसे ज्यादा डेवलप। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? इंडिजिनस को प्रॉब्लम करेगा। जो इंडिजिनस आर्टिसंस है, इंडस्ट्रीज है, रूरल है, उनको प्रॉब्लम करेगा वो, क्योंकि वो दे आर ऑर्गेनाइज्ड, चीपर, वेल मेंटेन्ड, राइट? यहां है नहीं। तो
अचानक बाढ़ के साथ आएंगे। जैसे मैकडी है, मैकडी जब इंडिया बर्गर लाया था 20 इयर्स तक उसको हर साल 20 करोड़ का घाटा हुआ, 20 साल 400 करोड़ का घाटा झेला। उसके बाद उसने पहली कमाई की एंड दैट वाज 5 लाख रुपीज, और आज 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बिजनेस। अब एक इंडस्ट्री घाटा झेल सकता है, क्या ये रूरल इंडस्ट्री घाटा झेल लेगी? झेल लेगी क्या? क्या ये 20 साल का स्पान वो संभाल लेगी? नहीं संभाल लेगी। व्हाई वी टॉक अबाउट द माइक्रो फाइनेंस? क्योंकि नाउ यू आर कंपीटिंग टू दोज वास्ट इंडस्ट्रीज, दोज ह्यूज इंडस्ट्रीज who are able to tackle the loss. They are not. इनको डेली का रोटी चलाना है। तो ये इसके लिए माइक्रो फाइनेंस की बात की जाती है, माइक्रो क्रेडिट्स की बात की जाती है। तो ये सब स्टडीज तुम्हारी है। ये मान लो कि अब जब स्टडी आएगी ना तुम्हारे पास में, तो तुम उस स्टडी में मेन हो कि शेड्यूल कास्ट का डिप्रेशन ऑपरेशन जो हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स की बात करोगे, माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक की बात करोगे, यू आर देयर टू गिव आंसर्स। सेकंड पेपर सारा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि वॉट एवर वी लर्न इन फर्स्ट पेपर रिसर्च सेकंड पेपर में तुमको डालना है, इसीलिए इसको फर्स्ट पेपर में डाला है। फर्स्ट पेपर इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, राइट? Research method, analysis method, case studies, what is culture, what is society, what is marriage, what is family, what is all about. Now in second paper you need to make practically in the Indian society, right? What is Indian society? Composed of various elements. What elements are there? Caste system, class system, and third the tribes. In caste system what kind of upper class, lower caste, right? In class system economic classes, elite class, middle class, lower class, lower class. Clear? Then we discuss about the part which is out to the caste system. The tribals is not the part of caste system. तो caste में हमने किसको लिया? SC. तो जब हम caste system की बात करेंगे तो हम बात करेंगे विद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और राइट SC। जब हम अलग बात करेंगे तो ट्राइबल इज आउट ऑफ दिस, तो फिर हम बात करेंगे ट्राइबल की। जो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो उसमें उसके साथ पढ़ेंगे एससी का प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन क्या है, और एसटी की बात करेंगे तो अलग होके, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, वो बाहर थी। हमने उनको क्या कहा था? आउट टू दी कास्ट सिस्टम। किस में डाल दिया था उनको हमने? पंचम वर्णा, अनटचेबल्स, निर्वासिता, क्योंकि जंगल में रहते थे, वनदार, वनवासी, तो वो बाहर हो गए थे। तो जब स्टडी करेंगे तो दो एस्पेक्ट में करेंगे। कास्ट सिस्टम का एससी पे प्रॉब्लम, तो एससी का प्रॉब्लम ज्यादा होगा सोशियो इकोनॉमिक। एसटी का क्या होगा? एसटी का होगा पॉलिसीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंट्रूजन ऑफ आउटर पीपल, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड इंडेटनेस। किसकी वजह से? क्योंकि अलूफ की वजह से, लो टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से, ये सब चीजें वहां समझने। सो मैक्सिको यूकेटन केस स्टडी हुआ। सो केस स्टडी इज ऑल अबाउट स्टडी स्पेसिफिकली ऑन अ स्पेसिफिक केस। स्टार्टेड स्पेंसर, देन पॉपुलराइज्ड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड, राइट? सो व्हाट वी डू इन अ केस स्टडी? सिलेक्शन ऑफ ए सोसाइटी, राइट? और कौन से तरीके यूज करते हैं? मेथोडोलॉजी हमारे पास में क्या है? हमने बात की थी, वी यूज मेथोडोलॉजी तो बंदे पर डिपेंड करता है कि इवोल्यूशनरी है, कि डिफ्यूजन है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, कॉग्निटिव है, राइट? वो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है? टेक्निक कौन सी है? सेमी कंजर्वेटिव इंटरव्यू। मेथड कौन सा है? सेमी पार्टिसिपेटिव।
बेनिफिट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव स्टडी, ऑब्जेक्टिव स्टडी, राइट, ऑब्जेक्टिव स्टडी, एक्यूरेट डेटा, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है? राइट, डिटैचमेंट, एक वर्ड लिख लो, क्या लिखोगे? डिटैचमेंट। इसको बड़ा करना है। डिटैचमेंट में क्या होगा? यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट, तो नॉन एस्पेक्ट कल्चर मिलेगा नहीं, पूरी सिचुएशन मिलेगी नहीं, राइट, दे विल ऑलवेज राइट फील और रियलाइज यू एज एन आउटसाइडर, राइट, सो आउटसाइडर कंसेप्ट होगा, इनसाइडर कंसेप्ट नहीं होगा। आउटसाइडर कंसेप्ट, डिटैचमेंट नहीं, हमसे तो घर बैठे रहेंगे, सेकेंडरी डेटा लेंगे, प्राइमरी डेटा ले रहा है, वहां बैठा हुआ है। बट प्रॉब्लम यही है, सेमी पार्टिसिपेटरी है। तो वही बात है कि खाने पर आइए, पड़ोसी है तो खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर आप हमारे मेंबर नहीं है, सेमी पार्टिसिपेटरी है। तो ये सेमी पार्टिसिपेटरी है। और तरीका क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव इंटरव्यू में क्या करते हैं हम लोग? कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बना ली, कुछ का मुंह से बोल लिया जगह देख के। कंजर्वेटिव में क्या है? लिस्ट तैयार है। नॉन कंजर्वेटिव में क्या है? कोई लिस्ट ना है, बैठ भाई यार, जो मन में आया पूछ लिया। और घर वाले कैसे हैं, काम वाम कैसे चल रहा है? बस वही बात है। वो आजकल आता ना यूपीएससी के इंटरव्यू के नाम पे, तो एक बंदे से एक सवाल पूछा गया कि भाई सामने खिड़की है, आप इस पे कूद जाओ। तो भाई पता लगा वगैरह, भाई साहब खिड़की में जाके अंदर कूदना था। तो वो कहता अरे यार ये चौथा भी मर गया क्या? ये लगता है कुछ बदलना पड़ेगा। यूपीएससी अनुभव सिंह साला दिन भर यही काम करता है। मैं यही कर रहा था, कौन क्या देखता है? तुम्हारा सोशल मीडिया अनुभव सिंह बस्सी पे खत्म हो जाता है, ऊपर से प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन तूने और ले रखा है? बस कर बस्सी। इसीलिए मैं मीडिया में रहता हूं। यही होता है दिल्ली में। जोश ने कहा ना, एग्जैक्ट वही है। आप मुखर्जी नगर में जाओगे ना, तो वहां पे ब्रोकर आएंगे, सीधा आपको वहां से ले जाएंगे नेहरू विहार। ठीक है, नेहरू विहार में एक 50 गज का प्लॉट है, उस पे 5 मंजिल है। ठीक है, नीचे मकान वाले रह रहे हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 सीढ़ियों में एक ही आदमी जा सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, आपको कमरा मिलेगा एक, यहां पे कमरा है, यहां पे आपके बाहर लेट बात है। कैसे आपको समझना नहीं है। कमरे का गेट है वो ऐसे होगा जिसमें से बाहर वाला खड़ा आपको आप आराम से अंदर देख सकता है, ताकि आप सुसाइड ना कर लें। ठीक है, तो कोई भी रात को 3 बजे भी झांक के देख सकता है कि आप अंदर है कि नहीं है। 3 उसके अंदर ऐसी लकड़ी लगी रहेगी। ठीक है, आप उसको चाहो तो बाहर से ताले जैसी चीज लगा सकते हो। राइट, आप रह रहे हो कमरों में, एक के ऊपर एक कमरे रहेंगे, 5 रूम में 5 है। ठीक है, बस वही उनका जीवन है। वो कमरा आपने ले लिया, कमरे का 3 महीने का दे दीजिए, बस आप जिए। पूरे इसी लोग से भरे हुए हैं। नीचे एक कमरे 2 कमरों के में वो खुद रहते हैं, और ऊपर 5 मंजिल बनाई रखी है, और वही उनका जीवन है। इतनी इतनी गलियां हैं, बस कोली उसमें से जीवन है उनका। बस नीचे वो सारे लोग बैठे रहते हैं, कोई भी बंदा आता है उसको पकड़ लेते हैं, क्या लाया? आलू लाया, 4 तो खा जाएंगे। बाबा पूछते पूछते आलू खा जाएंगे 4 के, प्याज खा जाएंगे खड़े खड़े। जो नीचे लोग बैठे रहते हैं वो इधर आप आलू प्याज वाले भागते हैं उनको देख के कि यार अभी 4 आलू कच्चे खा जाएंगे, सब्जी की जरूरत नहीं है कि मिर्ची ऊपर से डालेंगे, दिक्कत क्या है कि ज्यादा गर्म तेल पी लेंगे, फ्राई वैसे ही हो जाएंगे। तो वहां बैठ के अगर तुम केस स्टडी करो ना, मजा ही आ जाए। तो एक्चुअली ये सब केस स्टडीज है। When you talk about stand-up comedy ना, it is all about a case study। आपको केस स्टडी सबसे अच्छी देखनी थी। सबसे जबरदस्त केस स्टडी के मामले में था जिनकी डेथ हो गई, राजू श्रीवास्तव। जब वो किसी मैरिज का डिटेल अध्ययन करता था, या फिर ऐसे हाथ करके ऐसे वो जो गजोदर की बात करता था उस जगह की, उसका जो केस स्टडी था वो बेस्ट केस स्टडी, कि वो उसमें उतर के जिया। तो एक मैथोलॉजिकल एक्टर्स जो होते हैं ना, वो केस स्टडी के बहुत मास्टर होते हैं। जैसे दिलीप कुमार ने देवदास मूवी बनाई, 6 महीने हॉस्पिटल में रहा क्योंकि उस किरदार में डूब गया था, डिप्रेशन एंजाइटी में आ गया। जैसे ही मूवी में होता है कि उसकी शादी हुई,
क्या नाम था उसका, चंद्रमुखी की, तो उसने वही जिया, दारू पीने लगा, उसके घर के मरा, और फिल्म खत्म होने के बाद 6 महीने हॉस्पिटल। भाई साहब एंजाइटी डिप्रेशन गोलियां दे दे के उनको वापस खड़ा किया गया। तो ये मेथडोलॉजिकल एक्टर्स होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर पार्टिसिपेटरी हो गया और वो अनकंट्रोल्ड हो गया, तो अनकंट्रोल पार्टिसिपेशन मेंबर बन के रह गए। और निकलना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए बात। ऐसे रोल जो डेप्थ के रोल और डिप्रेशन के, ये सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो वैसा ही जीने लगते हैं 2 साल तक, 3 साल तक वैसे ही हो जाते हैं। सो केस स्टडी में 3 चीज पे ध्यान देना तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस स्टडी इज वेरी स्पेसिफिक। पहली बात लिखेंगे, केस स्टडी इज वेरी स्पेसिफिक। इट डज नॉट स्टडी कल्चर एज ए होल, rather it study a trait, institution or an element of a culture or society. The concept was coined by Herbert Spencer and popularized by the Robert Redfield, right? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको किया था, right? और उसका काम मैंने आपको बताया था। बेचारे का नाम ही नहीं है। मैक्सिको, सारा काम किस पे इसका, मैक्सिको, राइट? इसको हम कहते हैं ना फोक अर्बन कंटिन्यूम, जो मैंने तुमको बताया ना, कंसेप्ट इज गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। जैसे हमने पिजन सोसाइटी की ना यहाँ पे, उसने मैक्सिको की युकाटन में की थी। इसको बोलते हैं फोक अर्बन कंटिन्यूम या रूरल अर्बन कंटिन्यूम, इसका काम। शिकागो मैक्सिको में किया हुआ सारा इसका काम। तो काफी बड़ा नाम रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड का। जैसे मैंने कहा ना, शिकागो में काम किया इसने, लॉ स्कूल में, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी से, एंड आफ्टर सीरीज पब्लिश्ड फील्ड स्टडी फ्रॉम मैक्सिकन कम्युनिटीज, सारा काम किया था। टेपोजियन, फोक कल्चर ऑफ, इसका है फोक कल्चर ऑफ, इस बुक का नाम याद रखना, बहुत फेमस बुक है इसकी, फोक कल्चर्स ऑफ युकाटान। जब मैं एंथ्रो पढ़ रहा था ना, उस समय हमारे कोर्स में आता था फोक अर्बन कंटिन्यूम, हमने इसको पूरा पढ़ा था। द बुक है फोक कल्चर्स ऑफ युकाटान। एक ये पढ़ेंगे, द लिटिल कम्युनिटी, ये बड़ी अच्छी बुक है इसकी। जब हम लिटिल ट्रेडिशन, गेट ट्रेडिशन पढ़ेंगे ना, वो भी इसी से लिया हुआ है, राइट? कि वो ट्रेडिशन जो गांव में होते हैं, फोक में होते हैं, फोक लोर्स में होते हैं, बड़े बड़े टेक्स्ट में नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं लिटिल ट्रेडिशन। जो बड़े बड़े टेक्स्ट में होते हैं, बड़े बड़े जिनके नाम होते हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन। तो बस ये भी इसी से लिया हुआ है। तो हमारे 2 कल्चर कवर करता है, फोक अर्बन कंटिन्यूम एंड लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये सीखे। राइट? So, in case study, specific study, long-term study, as the participatory observation, it is also a long-term study used by Spencer, popularized by the Robert Redfield. Case study क्या करना चाहिए? Concentration on a society, specific marriage, kinship, family, any institution can be used for the case studies, right? And methodology, any can be. Method क्या होगा? Semi participatory observation. टेक्निक कौन सी ले रहे हैं? सेमी कंजर्वेटिव इंटरव्यू। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये होगी अपनी केस स्टडीज। केस स्टडी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू क्या है? टेक्निक है। क्या है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्निक की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनरी, ये क्या है? टेक्निक्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए टेक्निक्स इन रिसर्च, तो कौन कौन से नाम लिखेंगे? इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनरी। मेथड तो हमने सारे कर लिए ना। अब तक हमने जितना भी किया था केस स्टडी तक, क्या चल रहा है? मेथड चल रहे हैं। अब क्या आ रहा है? टेक्निक्स। क्लियर? तो पहली टेक्निक हमने क्या ली? इंटरव्यू।
Interview is a direct communication. Interview is a direct communication between researcher and object और इंडिविजुअल. देखो कई बार ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करना थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है. अच्छा तुम्हारे लिए ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे लिए सोसाइटी एक ऑब्जेक्ट है. सो हम क्या लिखेंगे? और इंडिविजुअल, ताकि बचे रहें. बचाने के गलियां लॉ की तरह जियो, गली पहले निकाल के रखो. राइट. तो आपने एक रिसर्च पढ़ी होगी कि एक जब कॉप्स का डाइसेक्शन करते हैं एमबीबीएस वाले, तो पहले दिन सब बच्चे ऐसे क्लास में आके खड़े हो गए. तो उनका इंस्ट्रक्टर आया वहां पे खड़ा हुआ डेमो देने के लिए. तो उसने क्या किया कि आपको मैं बताता हूँ डेमो क्या होता है. वो सोया हुआ था, तो उसकी नाक में अंगुली डाली और अपने मुंह में डाली. सब बच्चे देखे उबके कर रहे हैं. क्या अब तुम करो. बच्चे करे क्या? सबने अंगुली डाली, मुंह में डाली. तो वो खड़ा होकर कहता है अब देखो, मैंने ये अंगुली उसके नाक में डाली, ये अंगुली मेरे मुंह में डाली. और तुमने क्या किया? साल सब उल्टियां करे. कहां से आगे किया? कि बस यही ऑब्जर्वेंस है. समझ में आ गई? तो आपका जो रिसर्च का वो है, तो बस ये ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वर होते हैं, ये बाकी लोग होते हैं. वो पीछे से जो कहना है कुत्ता कमीना, जो कहना है कह लो. तो इंटरव्यू इज ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन और वन टू वन, और इट इज वन टू वन इंटरेक्शन. वन टू वन इंटरेक्शन right in research tradition. Right. It is generally used in observation method. Observation and case study method. Right. It is of three type. It is of three type. कौन कौन सा देखो. A, कंजर्वेटिव, राइट, और कंट्रोल्ड. इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव और कंट्रोल्ड. दूसरा और सेमी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. क्लियर? तीन पार्ट हो गए. इन कंजर्वेटिव मेथड केस स्टडी में सेंसस भी यूज किया जाता है. इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? केस स्टडी में हम सेंसस भी यूज करते हैं. सेंसस इज ए पार्ट ऑफ केस स्टडी. क्यों कह रहे हैं केस स्टडी सेंसस को? बिकॉज इन केस स्टडी वी स्टडी ऑन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. सो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल स्टडी. हम सिर्फ एक पार्ट को ले रहे हैं. किसको? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. राइट. तो पॉपुलेशन भी ले रहे हैं, इसलिए एक एस्पेक्ट पे हो गया. तो इसलिए सेंसस इज ऑल्सो अ केस स्टडी और सेंसस इज कॉल्ड ए सर्वे ऑल्सो. इसको सर्वे या केस स्टडी बोलते हैं. तो केस स्टडी में सर्वे भी आता है. सैंपल सर्वे, जैसे एनएचएफएस करता है,
एनएफएस क्या करता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इट्स जस्ट सर्वे, ये भी केस स्टडी का पार्ट है, राइट? तो सर्वे इज ऑल्सो ए केस स्टडी। क्लियर? तो कंजर्वेटिव में क्या कर रहे हैं? इन कंजर्वेटिव स्टाइल, इन कंजर्वेटिव में आप क्या कर रहे हैं? इन कंजर्वेटिव एंड इन कंजर्वेटिव मेथड, क्वेश्चंस आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरव्यूअर, and are asked in a systematic manner. Right? Questions are already organized. वो आएगा आपके सामने बैठेगा, आपको पहले हो सकता है लिस्ट भेज दियो। आप देखो जो इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें ज्यादातर क्या होता है, आपके पास लिस्ट पहले पहुंच जाती है, सिस्टमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रख दीजिए, वो 1 by 1 क्वेश्चंस पूछेगा, आपको आंसर्स देने हैं अकॉर्डिंगली। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव और कंट्रोल्ड मेथड, राइट? कि क्वेश्चंस आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, आपको पहले भेजेंगे, आपने इंटरव्यू के अंदर आपको बस 1 to वे करना है। तो उसमें क्या होता है कि रिसर्चर का माइंड क्लियर है कि मुझे क्या पूछना है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, तो मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑन द बेसिस दैट इट इज क्वाइट कंजर्वेटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड, सेमी कंजर्वेटिव। इन सेमी कंजर्वेटिव some questions are organized and some spontaneous. Some questions are organized and some questions are spontaneous. Right? मतलब जो कहीं भी आतो आती पूछ लिया बातें करते करते, अच्छा आपका विचार इसमें क्या है, मतलब होता है ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया आपसे कि भाई आप क्या, इस क्वेश्चन में से मुझे एक बात याद आ रही है, तो अगर आप ऐसा होता तो आप क्या कहते हैं? एंड देन नॉन कंजर्वेटिव और कंट्रोल्स में क्या होगा? क्वेश्चंस आर नॉट शेड्यूल्ड और ऑर्गेनाइज्ड, क्वेश्चंस आर नॉट प्री शेड्यूल्ड और ऑर्गेनाइज्ड, नॉट प्री शेड्यूल्ड or organized. Questions are generally asked on the basis of circumstances and environment. राइट? उस समय का क्या एनवायरमेंट होगा, क्या सर्कमस्टांस रहेंगे, उस पे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? वही वाली बात है कि आप किसी घर में घुस गए, फाटक खटखटाया, जी क्या आपका टॉयलेट क्लीन है कि नहीं, आप ही को ढूंढ रही थी, लो शुरू हो जाओ, आता है ना मिस्टर क्लीन। अक्षय कुमार आता था चैलेंज करके, एक बार एक आदमी आता घर में घुसता कि जी अब आपका टॉयलेट का नहीं कर नहीं बिल्कुल क्लीन कर देंगे, आप करो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया, कि नहीं क्लीन कर देंगे, नहीं ये वो है, वो गला पकड़ता कि चल साले, घर के पिछले जब फाटक उतार लेते 2 ईंटें पड़ी होती कर साफ कर, मैं तो यहीं बैठता हूँ इन दोनों ईंटों को सफेद करके दिखा दो। तो समटाइम्स ये होता है नॉन कंजर्वेटिव, दोनों तरफ से जो है अनकंट्रोल्ड है। So this is the non-conservative style of interview. So the interview method is generally used किस में कर रहे हैं, जिसमें आप केस स्टडी करें, मतलब ये कैसा है, ये फील्ड वर्क ट्रेडिशन का एग्जांपल में आता है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फील्ड वर्क ट्रेडिशन। इसके बाद लिखो शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी। शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, राइट? शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी, फर्क क्या? दोनों क्वेश्चंस है,
schedule and questionnaire, those are the both are the questions, list of questions. Difference क्या है पहले समझो. Questionnaire are sent to the desired society or people, right? They will go through the question and right answer and will send to you. Schedule में you go with the question, right? You will ask question, people will give answer and you will write. समझ में आ गया? बस इतना सा फर्क है. Questions are already there. Schedule में क्या होता है? Schedule में क्या होता है? Questions are already listed, but you are with the question. So more or less you are there. So you can write answer according to your interpretation, observation, people said, change, सब कुछ संभव है, but क्वेश्चन में संभव नहीं है. So लिखो schedule and question both are the list of questions. Schedule and questionnaire both are the list. तू तो पढ़ा हुआ है पहले से, यही तो टॉपिक जिसमें तू शांति से बैठा रहता है. Schedule and questionnaire both are the set of questions. Both are the set of questions. Both are the set of questions, right? In questionnaire, questions sent to the desired community or people whereas in schedule researcher approaches to the people or community with the questions. राइट? अब डेफिनेशन तुम्हारे पास आ गई. अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज क्या होगी? क्वेश्चनरी इज रिजिड इन नेचर. देखो क्वेश्चनरी इज रिजिड इन नेचर. बट शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. Right? Questionnaire is formal, whereas schedule is informal. Right? Questionnaire covers larger extent of the society, whereas schedule is limited. अब कुछ नहीं तो अब हजार यूनिवर्सिटी को भेज दो, 1000 सोसाइटी को भेज दो बटन क्लिक करके, पर शेड्यूल में तो जहां तक आप पहुंच पाओगे वहां तक ही. राइट? अब खास बात दोनों में जो फर्क है वो है क्वेश्चनरी इज यूजफुल फॉर द लिटरेट सोसाइटी ओनली. राइट? ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है. Whereas schedule is applicable to literate and illiterate, both of the societies. क्योंकि वहां पर तुम खुद बैठे हो क्वेश्चन पूछने वाले. अब भाई जिसको क्वेश्चन समझ में आएगा वही तो लिख के करना. तो लिटरेट सोसाइटी के लिए क्वेश्चनरी है, पर शेड्यूल इलिटरेट. इसीलिए ट्राइबल सोसाइटी में शेड्यूल जो है वो ज्यादा हमारे लिए काम का है. शेड्यूल क्वेश्चनरी इज यूज्ड इन सोशियोलॉजी. Questionnaire is used generally in sociology, whereas schedule is used in anthropology.
आता है बंदा किसी घर में गया कि भाई साहब क्या खाओगे, आपके लिए खीर लाऊं के रसगुल्ले खाओगे, कि क्यों आपके घर में एक ही बर्तन है क्या क्या? दोनों ही ले आओ। मैंने ठंडा लोगे गरम लोगे, कि पहले गरम ले आओ पहले ठंडा ले आओ, जब तो गरम ठंडा हो जाएगा तो वो भी खा लेंगे, टेंशन ना लोगे। अब आए तो लेकर ही जाएंगे, शेड्यूल वाले वही होते हैं कि भाई शाम हो गई है तो क्वेश्चन वुश्चन करेंगे, रात बिताएंगे, तो बनवा लो जो भी आपके घर में गए। तो शेड्यूल्स आर यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी, वेयर क्वेश्चन आर यूज्ड इन सोशियोलॉजी, राइट। शेड्यूल फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड है। शेड्यूल में आप खुद वहां पर है तो यू कैन यूज योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन इन शेड्यूल, एंड researcher or observer can use its own interpretation, but it is not possible in questionnaire. अच्छे ध्यान रखना। राइट, तो ये आपके हो गए सारे मेथड कंप्लीट। अब लिखो डेटा प्रेजेंटेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ऑब्जर्वेंस ऑफ डेटा हो गया, अब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीन तरीके हैं, कौन कौन से? पिक्टोरियल, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल। पिक्टोरियल, डायग्रामेटिक और चार्ट, एंड ग्राफिकल, और चौथा बाय वर्ड्स, टेक्स्ट। राइट, एक हो गया टेक्स्ट। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। It can be presented in form of pictures, it can be presented in form of numerical data, it can be graphical representation, right, or it can be in text or numericals। ये हमारा है presentation of data, और यहां पर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। डेटा कलेक्शन, डेटा ऑब्जर्वेशन एंड डेटा प्रेजेंटेशन। तो कल से हम शुरू करेंगे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। तो पहला टॉपिक हमारा होगा ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसे हम ध्यान रखेंगे कि अदर वर्ड में ग्रोथ के पीछे कारण था एंथ्रोपोलॉजी का इंटरेस्ट, यहां पे था कॉलोनियलिज्म, इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। दे स्टार्ट द एथनोग्राफी, इसके लिए फॉर द बेटर गवर्नेंस, टू नो द कल्चर, राइट। वही बात जो किसने कही थी कि पहले उनका कल्चर जानो ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके, राइट। सब अमेरिका ने यही किया था भाई, बेटर कल्चर, कॉलोनियलिज्म का ही बैकग्राउंड था इंडिया में। तो इंडिया में पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होंगे? ब्रिटिशर्स। दूसरे कौन होंगे? इंडियंस। तीसरे इंडियन अमेरिकन, राइट। इस तरह से तो हम जब पढ़ेंगे पहला पेज ब्रिटिशर्स का आएगा, फिर इंडियन आएंगे, फिर इंडियन पहले ट्राइबल्स पे करेंगे, उसके बाद किस पे करेंगे? अपनी खुद की सोसाइटी पे करेंगे। तो फर्स्ट चेंज इन ब्रिटिशर्स। तो हम अलग अलग पार्ट करेंगे। देखो, जैसे अगर हम एंथ्रो की बात करें तो पहली बात होती है कि हु स्टडीड, राइट, हु स्टडीड। हम कहेंगे ब्रिटिशर्स, इंडियंस, अमेरिकन। हु वर स्टडीड? ट्राइबल्स, rurals, urbans, new branches. How were studied? Research method, right? Why were studied? Colonialism, interest, colonialism and बस ये चार पार्ट करेंगे। तो पहले who were studied, who studied, who were studied, how were studied and why were studied। यहां हम स्टार्ट लगेंगे। वही फॉर्मेटिव पेज, कंस्ट्रक्टिव, एनालिटिकल, वही टाइम, राइट, टू 1737, 1738 टू 1940, 1940
तो वही चीजें रहेगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किस किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहां पे कंट्रीब्यूट, उसके बाद हम स्टडी शुरू करेंगे ताकि हमको नाम और लोग पता रहे। जैसे रूरल स्टडी करें, हमको पता है सिद्धू है, मजुमदार है, कपाड़ी अक्सार ने काम किया, ये सब हम पहले पता करके चलें ताकि आगे हमारी स्टडी, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो अभी गुरुजी आने वाले हैं। डूबे जी, हम तो डूबे हैं।